Happy morning, my dear students. Welcome to the Active Maths. After long time, I am meeting you. Now, what I am going to do today? आज मैं क्या करने जा रहा हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर सर्कल. But don't tell me circle. मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको. Circle means chapter circle I am taking. Okay. Now let us enjoy the chapter circle. See. First, I am telling you the basic concept of the circle. This is the circle. ये आपने ले लिया circle. O is called the center of the circle. O is called the center of the circle, and this is called radius of the circle, say R. P. Okay? O is called the center of the circle and R is called the radius of the circle. So how to define the radius? A line segment which joins the center of the circle to any point on the circle is called the radius. A line segment which joins the center of the circle to any point on the circle is called the radius. It means OP will be the radius, OA will be radius, OQ will be radius, OY will be the radius. तो radius की definition समझ में आई? A line segment which join the center of the circle to any point on the circle is called radius. Okay? Now concept आता है अपना chord का. Chord यानी क्या? What is chord? This is a circle. A line segment. This is called chord. AB is called a chord. Chord. It means chord की definition अपन कैसे देंगे? The line segment whose end point lies on the circle is called a chord. तो ये आपकी chord हो गई. This is chord. This is chord. This is chord. It means how to define a chord? Chord की definition कैसे देना? A line segment whose end point lies on the circle is called a chord. And this is called XY. XY is called a diameter. It means the longest chord which passes to the center of the circle is called a diameter. It means diameter will be a chord. पर जरूरी नहीं है कि chord diameter हो. जैसे ये क्या है? ये chord भी है और diameter भी है. ये diameter क्यों है? Because it passes to the center of the circle. पर ये जो है बेटा, ये केवल जो है chord है. ये chord है, ये chord है, ये chord है. ये diameter नहीं हो सकते. ये diameter जब भी होंगे, then it will pass to the center of the circle. And every diameter is a chord. यानी जो प्रत्येक diameter होगा, वो chord होगा. पर जरूरी नहीं कि chord जो है वो diameter हो. I think this is clear to you. It means every diameter is a chord, but need not necessary that chord will be a diameter. यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा कि chord जो है वो diameter हो. ये diameter जब भी होगा जब वो center से पास होगा. यानी every diameter जो है, प्रत्येक diameter जो है ना, वो chord भी है. वो chord है और diameter भी है. diameter क्यों है? क्योंकि वो center से पास हो रहा है. तो ये जो है ये आपकी chord है, पर इसको diameter नहीं बोल सकते. ओके, तो आपको chord का कंसेप्ट समझ में आ गया. तो डेफिनेशन chord के हम क्या देंगे? ए लाइन सेगमेंट whose एंड पॉइंट यानी दो एंड पॉइंट lie on the circle is called a chord. This is called chord. This is called chord. आ गई बात समझ में? तो ए भी आपकी chord होगी, पी क्यू chord होगी, सी डी chord होगी, एक्स वाई chord होगी. ओके. एंड डायमीटर यानी आपका क्या हो जाएगा? एक्स वाई विल बी द डायमीटर. अब कंसेप्ट आता है आपका
सेकंड का, SECANT, सेकंड का यानी क्या, ए लाइन हुज एंड पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी ये जो होगा ये, जैसे मान लो इसका ये एंड पॉइंट है और इसका ये एंड पॉइंट है, ये ले लिया आपने एंड और ये एंड, तो इसको हम कहेंगे सेकंड, SECANT, क्योंकि इसके जो एंड पॉइंट है वो ये लाइन जो सर्कल में से आर पार निकल जाती है, और ये जो पॉइंट है इसके दोनों के एंड पॉइंट जो है सर्कल के बाहर लाया करते हैं, तो इसको हम कहेंगे सेकंड। ओके, नाउ कंसेप्ट आता है टेंजेंट का। टेंजेंट tangent. So how to define a tangent? A line which touches the circle is called tangent. A line which touches the circle, यानी जैसे ये लाइन ले ली, तो ये हो गया, ए लाइन विच टचेज द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। और एक और आप दिमाग में कंसेप्ट जो है ले लो, जस्ट यू कीप इन माइंड कि रेडियस जो होती है ना, रेडियस जैसे ये लिया, तो रेडियस इज ऑलवेज, सपोज दिस पॉइंट इज एन, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी रेडियस जो होती है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी यू कैन से, आप बोल सकते हो कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। इट मीन दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, तो आप यू कैन से, यू कैन राइट कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, एंड व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, जब इसके सर्कल के हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें अपने को देखना पड़ेगा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इट मीन रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो सबसे पहली मैं थ्योरम आपके सामने लेता हूं। अब आपको टेंजेंट समझ में आ गया, दिस इज ए टेंजेंट, ए लाइन विच टचेस द सर्कल इज कॉल्ड ए टेंजेंट। और सेकंड क्या होता है, ए लाइन हुज एंड पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड सेकंड। आ गया समझ में। और टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट विच टचेस द सर्कल, यानी ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई और ये टेंजेंट हो गई, एंड रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। अच्छा, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और मैं जब आपको लिखवाऊंगा तो मैं बोलूंगा गिवन ए सर्कल हुज सेंटर इज O एंड रेडियस इज R, तो आपको लिखना ऐसा है COR, यानी गिवन ए सर्कल हुज सेंटर इज O, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। जैसे मैंने लैंग्वेज में आपको बोला, लेट गिवन ए सर्कल whose center is O and radius is R, तो आप ये लिखेंगे। इसका मतलब ही ये होता है कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। अब मैं एक थ्योरम आपके सामने लेके आ रहा हूं, लेट अस सी। पहला थ्योरम है अपना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point
टू ए सर्कल आर इक्वल। सी क्या थ्योरम है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको थ्योरम में यहीं पे याद करवा दूंगा आज आपको। केवल एक बार आप देख रहे हैं ना, पूरा थ्योरम आपको याद हो जाएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ये सर्कल ले लिया, ये सर्कल, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली। तो सबसे पहले गिवन में अपन क्या लिखेंगे? थ्योरम समझ में आया तो फिर मैं यहां पे लिख दूंगा द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। यानी आपको शो करना है सबसे पहले क्या गिवन है? गिवन है सर्कल whose center is O and radius is R and PA and PB are two tangents. Let us see. और आपको शो करना है PA और PB इक्वल होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन में? गिवन ए सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, एंड पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। आपको क्या शो करना है? पी ए इज इक्वल टू पी बी। टू प्रूव दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्या बेटा शो करना है आपको? पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो सबसे पहले मैंने किया कंस्ट्रक्शन किया। तो क्या किया? ये सर्कल का सेंटर ओ है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ बी। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी, इनको हमने मिला दिया। ओके, और क्या गिवन है? गिवन है सर्कल हु सेंटर इज ओ एंड रेडियस इज आर, पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। टू प्रूव दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ओके, नाउ प्रूफ। प्रूफ in triangle OAP and triangle OBP. In triangle OAP and triangle OBP, angle this is equal to angle this. Angle OAP is equal to angle OBP is equal to 90 degree. Angle OAP is equal to angle OBP is equal to 90 degree. Right angle, because radius is always perpendicular to the tangent. OP equal to OP, common side. OP equal to OP common side, and OA equal to OB radius. ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP बाय RHS। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए? बाय RHS। राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द प्रॉपर्टी RHS।
तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक्चुअली में वो सीपीसीटी नहीं होता है, वो सीपीसीटीसी होता है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब हो गया एपी और यू कैन से पीए इज इक्वल टू पीबी बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब हुआ पीए इज इक्वल टू पीबी। तो यही थ्योरम हमको प्रूव करना था। बाय द विच प्रॉपर्टी? बाय आरएचएस, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये एक ही थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है सर्कल के अंदर, जो मैंने आपको समझा दी। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आज करा देता हूं आपको। एक्सरसाइज 10.2 पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1। फ्रॉम ए पॉइंट Q on the length of the tangent to a circle is 24 and the distance of Q from the center is 25. Find the radius. ये Q, ये O, ये 25 और ये 24। सी बेटा, आपको क्या करना है कि ये 25 आपको दे के रखा है, इसको P बोल दो। ये 25, ये 24 और आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो तुमको मालूम है दिस एंगल इज 90 डिग्री, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका OQ स्क्वायर बराबर QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। और OP यानी क्या हो गया? रेडियस। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। इट मीन 625 इज इक्वल टू 576 प्लस OP स्क्वायर। तो 625 माइनस 576 इक्वल टू OP स्क्वायर। तो 49 इक्वल टू OP स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर। तो OP बराबर आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर हुआ 625, 24 का स्क्वायर हुआ 576। तो 625 माइनस 576 इट मीन्स 49। 49 मीन्स 7 का स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू 7। तो रेडियस कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। तो मैंने आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करवा दिया है। टुमारो इन माय नेक्स्ट लेक्चर यू विल गेट द अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे अहेड।